So now we'll study that. Okay, that is also a relative pronoun. That को हम पढ़ेंगे जैसे that आप पढ़ रहे थे who, which, what. जो that एक ऐसा आपका relative pronoun है, that's not used as an interrogative pronoun. Rest of these relative pronouns can be used as an interrogative pronoun. What can be used as an interrogative pronoun, which, who, whose, whom, but you cannot use that as an interrogative pronoun. So that has got different certain qualities, and that we are going to discuss here, so that it can replace who and which. So that आप कहाँ पर यूज़ करेंगे? हु को भी रिप्लेस कर सकता है, विच को भी रिप्लेस कर सकता है. मतलब आपका दैट एनिमल्स के भी लिए यूज़ हो सकता है, थिंग्स के भी लिए यूज़ हो सकता है, मैन के भी लिए यूज़ हो सकता है, वुमन के लिए भी यूज़ हो सकता है, फीमेल के लिए भी यूज़ हो सकता है, एंड मेल के लिए भी यूज़ हो सकता है. सो दिस मीन्स दैट इज़ used in place or instead of who and which. So which in certain situations, some not all the times, but in certain situations you would use in place of who and which. So relative pronoun, that is about relative pronoun used for people and objects both. हम डिस्कस कर रहे थे, अब भी अभी हमने ऑब्जेक्ट में डिस्कस किया कि ऑब्जेक्ट में क्या आता है आपका, समथिंग आ animals. Okay, things are animals, so it is used for both animals, objects means animals and things, and then people means man and woman. So here let's take example of that which is used with people, which is used for people. They caught the man that spied for China. मतलब उन्होंने उस बंदे को पकड़ लिया जो कि चाइना की जासूसी किया करता था. सो दैट मीन्स वॉट, मैन के लिए हम क्या यूज़ कर रहे हैं यहाँ पर, दैट. अगर यहाँ पर हम दैट को हटाकर हु लगाते तो क्या सेंटेंस सही था? दे कॉट द मैन हु स्पाइड फॉर चाइना. येस, एग्जैक्टली एंड ऑब्वियसली दैट सेंटेंस वुड बी करेक्ट. हाँ, वो सेंटेंस क्या होता आपका, क्या होगा, करेक्ट होगा. सो दिस इज़ हाउ I lost the watch that he gave me. Here we have used what? Who हम यूज़ कर सकते थे, क्योंकि who को आप रिप्लेस कर सकते हैं that से, that को रिप्लेस कर सकते हैं who से, लेकिन that आपका रिप्लेस जब होगा तो who से भी हो सकता है, which से भी हो सकता है. लेकिन that को रिप्लेस करने के लिए that किसको रिप्लेस करता है, which को, who, दोनों को. So I lost the watch that he gave me. हाँ, यहाँ पर हमने क्या किया कि I lost the watch which he gave me. मैंने वो वॉच गंवा दी मुझसे, मतलब वो लॉस्ट हो गई जो वॉच इसने मुझे दी थी. दैट इज़ वाट, यहाँ पर दैट हमने यूज़ किया तो हम विच भी यूज़ कर सकते हैं, यहाँ पर आप हु भी यूज़ कर सकते हैं. सो दैट इज़ यूज्ड फॉर that is used in the place of who and which at the same time. So see, do remember that who is a sort of pronoun that does discrimination, that experiences, entertains discrimination. It is only used for what? It doesn't have any kind of consensus, it doesn't have any kind of agreement with animals and things. But on the other hand, which is also a sort of discriminated or biased kind of pronoun that is only used for things and animals. It is not gonna use for people, it's not gonna use for men and women. So these two, who and which, both are what? A sort of biased pronouns. They're they have their own certain qualities and certain uses for which they stand and for which they have been used. But that is a sort of bridge that joins these two pronouns together. And what separately who has got qualities, and what separately this word which has got qualities, that is there to join them, that is there to be used for, that is there to be used instead of who and which. It can be used for both. It can be used for animals and things, not only that, but also it can be used for
peoples, but also that can be used for man and woman. So this is how that is used for both the things. So next is we are moving towards next pronouns like who. तो हमने पढ़ लिया, whose पढ़ेंगे अब, and then whom पढ़ेंगे. Whom, this is whom. Again I am repeating, again I am coming up with that, not again repeating. So I am coming up with this again. So this is what whom and whose. Whose is used for possessive purpose. जैसे आप यूज़ कर रहे थे he, तो he का पॉजिटिव क्या था, his, एंड उसका ऑब्जेक्टिव क्या था, him. सिमिलरली who एक एज ए सब्जेक्टिव यूज़ होता है, उसका पॉजिटिव क्या होगा, whose. मतलब he का मतलब क्या है, he plays something, he is in the class, वो क्लास में होगा, कुछ मतलब कि वो कुछ खेल रहा है, तो इस वहाँ पर आप क्या यूज़ करते हैं, ही इज़ द मैन हु इज़ इन द क्लास. ये वो बंदा जो कि क्लास में है, ही इज़ द मैन हु प्लेज फैंटास्टिक innings. This is how you are using for subjective purpose there, but his is always used for possessive purpose, such as you can use for this is his car, this is his pen, like this is the pen of his. So this is how you are using. But similarly he is a man whose pen, के ये वो बंदा है जिसकी पेन was lost, जो कि गुम हो गई है. So that is there what you are using for. Whose is for possessive purpose and whom is for him, like he told him. This is a man whom you told, like whom you told. So you told him, this is the man whom you told. So this is how you're using for objective purpose. And objective sometimes not only for objective purpose, but it is used for agent purpose, it is used for कॉम्प्लीमेंट पर्पस. तो ऑब्जेक्टिव हमने कहा कि ऑब्जेक्टिव जैसे हम सिंपली यूज़ करते हैं SVO, ओ में आपका ऑब्जेक्टिव में एजेंट एंड कॉम्प्लीमेंट भी आ जाता है. सो वेल हु पॉजिटिव ऑफ हुज़ क्या है, पहले हम हु को तो हम पढ़ चुके हैं, तो हम पढ़ेंगे अब हुज़ को. हुज़ इज़ अ पॉजिटिव ऑफ हु एंड विच बोथ. विच की अगर पोजीशन किसी एनिमल की शो करनी होगी तो भी आप हुज़ यूज़ करेंगे. अगर किसी बंदे की, किसी शख्स की, किसी इंसान की पोजीशन शो करनी होगी तब भी आपने हुज़ का ही इस्तेमाल करना है. सपोज दिस वाज द मैन हुज सन पास द कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम. ये वो शख्स है, ये वो बंदा है जिसके बेटे ने कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम, मुकाबले का इम्तिहान पास किया है. सो हेयर वी हैव यूज्ड वाज, इसलिए खुद ने नहीं किया, इसके बेटे ने किया, इसकी पोजीशन ने किया, किसके बेटे ने, हिज सन हम कह सकते हैं. तो हिज इज़ व्हाट पॉजिटिव केस. एंड यहाँ पर हम क्या यूज़ करेंगे, हुज़. तो ये मैन है, यहाँ पर हम वहाँ पर क्या कर रहे थे, हम डिस्क्रिमिनेशन कर रहे थे, कहाँ पर हु एंड विच पढ़ रहे थे तब. लेकिन हुज़ आता है तो हुज़ आपका विच के लिए भी यूज़ होता है एंड आपका किसके लिए यूज़ होता है, हु के लिए भी यूज़ होता है. मतलब यहाँ पर हुज़ किसके लिए यूज़ हुआ है, मैन के लिए. तो हु होता तब भी यूज़ हो सकता था. सपोज दिस वाज द मैन हु इज़ द फादर ऑफ द मैन हु गॉट हु पास कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम. दिस वाज द वॉच हुज प्राइस वाज हाई. ये वो वॉच थी जिसकी प्राइस हाई थी, ज़्यादा थी. सो किसकी प्राइस, वॉच की. तो हुज किसके लिए यूज़ हुआ है, वॉच के लिए. वॉच इज़ नॉट ए human, watch is not a person, a people, it is what, thing, it is object. It is object not in grammatical sense, it is object in the sense of things and animals. So this is how it is used for what, whose is used with watch. अगर यहाँ पर which लगना होता तो who नहीं लग सकता था कभी भी, लेकिन whose यहाँ पर लग सकता है. Hope it is clear, you are getting it. वेल सो दिस इज़ हाउ. कभी कभी आप क्या करते हैं, बाज़ोकात आप इनको ऑफ विच का इस्तेमाल करते हैं. सपोज़ ये सेम सेंटेंस अगर हम इस तरीके से लिखें तो भी इट वॉन्ट बी काउंटेड रॉन्ग. दिस वॉज द वॉच द प्राइस ऑफ विच वॉज हाई. द प्राइस हमने क्या किया, द प्राइस ऑफ विच, इसके लिए हमने विच भी यूज़ किया लेकिन ऑफ विच यूज़ किया. तो आप ऑफ विच यहाँ पर आप नहीं यूज़ कर सकते. कहाँ पर, दिस वॉज द मैन ऑफ विच सन. ऑफ विच नहीं कर सकते, द सन ऑफ विच नहीं कर सकते. हम ऐसा नहीं कर सकते क्योंकि आपके
प्रोनाउंस जो हैं वो एक विच है जो जिसके साथ आपका ऑफ प्रेपोजिशन लगता है। बाकी आपकी कोई भी ये आपके रिलेटिव प्रोनाउंस कभी भी आपके प्रेपोजिशन नहीं लेंगे। हु नहीं लेता प्रेपोजिशन, व्हाट नहीं लेता, दैट नहीं लेता, हुज नहीं लेता, हुम आपका प्रेपोजिशन लेता है पी, एंड विच लेता है ऑफ विच। क्लियर? सो नाउ वी आर मूविंग फॉरवर्ड टू डिस्कस whom is used for person which they are not subject. That whom is used for what? समथिंग दैट इज़ नॉट सब्जेक्ट। पर्सन के लिए वो यूज़ होगा लेकिन वो एज ए सब्जेक्ट इस्तेमाल ना हो। एज ए सब्जेक्ट अगर वो इस्तेमाल ना होगा तो वो क्या होगा? ऑब्जेक्ट हो सकता है, वो क्या होगा? एजेंट हो सकता है, कॉम्प्लीमेंट हो सकता है। तो आप अगर यहाँ पर हम देखें कि ऑफन यूज्ड विद प्रेपोजिशन, हमने अभी एक चीज़ डिस्कस की है कि ये जो आपका हुम है ये आपका ऑफन यूज्ड विद प्रेपोजिशन। प्रेपोजिशन इनके साथ आती है। अगर ग्रामर में क्वेश्चन आ जाए तो आपने ये देखना है कि हुम कहाँ लगता है, हु कहाँ लगता है। तो हुम के साथ हमेशा आप प्रेपोजिशन लगाएंगे। अब हु भी आपका एक वर्ड है जो कि ऑब्जेक्ट के लिए यूज़ होता है। सब्जेक्ट हु भी सब्जेक्ट के लिए भी यूज़ होता है, ऑब्जेक्ट के लिए भी यूज़ होता है। लेकिन हुम किसके लिए यूज़ होता है? हुम सिर्फ और सिर्फ आपका यूज़ होता है ऑब्जेक्ट के लिए, ऑब्जेक्टिव पर्पज़ के लिए, एजेंट के लिए एंड कॉम्प्लीमेंट के लिए। सो इसके साथ आप प्रेपोजिशन लगाते हैं टू हुम, विद हुम, बाय हुम। सो दिस वॉज द स्टूडेंट हुम ही asked question. So whom he, जिसको पूछा, जिसने नहीं पूछा, ये वो स्टूडेंट है जिसको इसने क्वेश्चन पूछा। सो इट इज़ यूज फॉर स्टूडेंट। स्टूडेंट इज़ ए पीपल, स्टूडेंट इज़ ए मैन और वुमन, गर्ल, अ बॉय। दैट इज़ व्हाट इट इज़ यूज्ड एज एन। मैंने आपको कहा था कि ये एज ऑब्जेक्टिव अगर यूज़ होगा तो ठीक है। यहाँ पर ऑब्जेक्टिव नहीं यूज़ हो रहा है, यहाँ पर क्या हो रहा है? दिस वॉज द स्टूडेंट। यहाँ पर एज ए कॉम्प्लीमेंट यूज़ हो रहा है। कॉम्प्लीमेंट के लिए भी आप यूज़ करेंगे, एजेंट के लिए भी यूज़ करेंगे आप, तो फिर आप यूज़ कर सकते हैं ऑब्जेक्ट के लिए भी। सपोज दैट वॉज द बॉय विद होम आई प्ले चेस। सो विद होम, बॉय किसके साथ लगा? बॉय के साथ लगा, एंड देन उसके साथ आपने विद होम लगाया। जैसे आप पैसिव क्वेश्चंस करते हैं तो पैसिव में आप बाय होम भी लगा सकते हैं, टू होम भी हम लगाते हैं। सो दीज प्रेपोजिशंस कैन ऑफन बी यूज विद होम।